Good evening, friends, ladies and gentlemen. A warm welcome on this special day of Industry Insight session. We'll start today's session, and before that, I welcome all of you on behalf of Federation of Indian Industries and Professionals. So let us understand about FEEP and industry insights, and then we'll go to the main session onwards. Good evening, ladies and gentlemen. We absolutely believe in the power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading Industry Insights wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020 with the objective of boosting the small and medium business movement across the country and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members and the whole society through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder who is working for the nation-building cause and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development, creating industrial insights, inculcating industrial development, facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions, enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health, and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Katta, Spot, Digital, Womenpreneur, and Navorja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco environment, education, social and life. Now, it's time to present you Industrial Insights topic for the day. We all know that business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. And of course, business is to earn profit. Business comprises very many functions like marketing, sales, service, finance, purchase, R&D, engineering, logistics, human resource, personnel, facility, quality and many others.
Further, these functions will have various systems and processes. We need adequate knowledge and various skills to practice and execute these systems and processes and handle these functions to run the business or an enterprise and achieve desired results. This is where industry insights play an important role in providing inputs on various topics for all kinds of business categories and professionals. Industry Insights will have series of programs organized every fortnight, and it will cover topics in different categories like financial management and accounting, marketing, sales and service, managerial skills and people management, project management and planning, quality systems and quality management, business establishing process, government policies, support system, and legal aspects of business, and many more. These main categories will have very many subtopics to comprise all information and contents. For example, financial management and accounting will have financial planning, management accounting, auditing, taxation, etc., etc. Marketing, sales and service category will have brand management, digital marketing, handling objections, customer retention, etc. Under managerial skills and people management, we will have leadership skills, team building and motivation, delegating skills, analytical skill, and many more topics. Project management and planning category will have project planning and budgeting, resource management, risk management, strategic alignment, etc., etc. Under quality systems and management, there will be topics like 4 main elements of quality, 7 principles of QMS, total quality management, ISO, etc., etc. Government policy support system and legal aspects of business will cover topics like government schemes and policies, role of banking in economy, role and support of MSME, etc. The laws to maintain the decorum as per state and central government. With this brief about the industry insights, now I request our programs coordinator to take over for introducing today's topic and the speaker. Thank you. Thank you, Priyanka. There is a brief introduction about FIP and industry insight platform. Thank you once again. Ladies and gentlemen, once again I welcome all of you. सभी को मेरा नमस्कार, सभी को सुस्वागत है. आज का जो टॉपिक है that is broadening women entrepreneurship. See, the significance of empowering women is not limited to family or society or social activities and all. If we really want to grow the country or develop the country, definitely, जैसा हिंदी में कहावत है, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे नारी का हाथ होता है, बट सक्सेसफुल कंट्री के पीछे भी नारी का हाथ होना बहुत जरूरी है. ओके, सो अगर उम्र को एम्पावर करना है तो नॉर्मली हम जो बोलते हैं कि हाँ अपना घर संभालना है, समाज संभालना है, सोसाइटी संभालना है, ऐसा इतना ही नहीं है. कंट्री को भी अगर डेवलप करना है तो उतना ही सिग्निफिकेंस रहेगा वुमन एम्पावरमेंट के लिए. सो बिफोर दैट शी हैज टू गेट, okay, if country wants to be Atmanirbhar Bharat, so woman has to become Atmanirbhar Nari. Okay, that is most important. So today we have got a very, very dynamic personality. On behalf of FIIP and all of you, I welcome Ms. Sujata Mohapatra ma'am. Ma'am, welcome you on this platform. Today we'll have a very enlightening session, and I'm sure. So friends, before I hand over the session to Ms. Sujata, I would like to talk about her. So such a dynamic and young lady, we're all lucky to have on this platform today. So she has got a rich experience of 15 years in development sector. So many kind of development activities she has done in her last 1.5 decade. She has completed sociology in master degree. Okay, she is a state level trainer for women entrepreneurship and livelihood of government of Odisha. She belongs to Odisha. So she is a certified national and state level master trainer for communication and leadership. Okay, plus women rights and empowerment. So we have got a right lady with us today to enlighten us on women entrepreneurship. She is a founder of
founder and secretary of Sadhana Foundation. She has started her own venture called Sadhana Foundation as well. So she is an alumni of US Exchange Program, International Visitors and Leadership Program, IVLP. She is a National Fellow on Right to Information and Leadership at Department of Personnel and Training, Government of India. Okay, such a very valuable position she is holding. She is a member of National Alliance for Women Organization, that is now. She is a lifetime member of Yusuf Mehalri Center, Mumbai. She has got so many feathers in her crown. Okay, so ma'am, welcome once again, and it is over to you. Okay, you can start your presentation. Thank you so much. Okay, thank you so much, sir. Thank you very much for a beautiful introduction. So, thank you so much once again, FIIP, FIF Parivar family, for giving me such a beautiful opportunity to speak something about broadening women entrepreneurship, the perception and reality. Whatever I have experienced and whatever I have gained knowledge through my journey from last 15 years, I'll just share it briefly. So let's start from myself. I have my one organization, that is Sadhana Foundation, whatever I mentioned in my bio profile. So while starting my journey in 2006 in the Right to Information movement, so I felt that women empowerment, girls empowerment, and that economic empowerment is very much necessary. So after that, I started journey in women entrepreneurship, women rights, women development. My special subject is gender and gender-based violence. As you know, gender-based violence is spreading everywhere. Each time, every day, each moment, we are facing the same, but we are not feeling that it is the kind of violences. So I got the opportunity in 2014 also to visit USA, that is IVL program, International Visitors Leadership Program, and learned many things from them. How we can mainstreaming women and girls in each sphere so that they can feel empowered, they can get more power, they can speak for themselves. So, and luckily I got an opportunity in 2016, I think. That is one project is running under NULM, National Urban Livelihood Mission. So I was coordinating in 22 wards in Bhubaneswar community in urban area. And that time I got associated so many self-help group members. Basically the community leaders of Odisha, of Bhubaneswar, those who are staying in the field of, self-help group activities. As we know, and Odisha is such a pioneer state who has initiated this self-help group activities under Mission Shakti. You know very well, we have 7 lakh self-help groups and 17 to 19 lakhs women also, they are involved in this process. So while associating with them during my project period from 2016 to 2021, 5 years projects, so I felt that 3 things are very much important for women. One is education, second one is economic independence, financial independence, and third one is to participate in each decision-making process. Unless we involve in 3 processes, in 3 segments, there can't be, we can't get women empowerment, we can't make them mainstreaming through different aspects. So I thought, yes, let's start this work. So I started my work on women entrepreneurship. And simultaneously, I focused on gender and gender-based violences because it is one of the aspects which is closely related with women entrepreneurship and mainstreaming gender. This is the whole journey I started with you. And luckily, I just forgot to mention one segment that I am also a trainer and mentor of BYST family, Bharatiya Yuva Shakti Trust, where I got associated Dr. Mohit sir, and I just learned 2 days session on mentors-mentee relationship. And thank you so very much, sir, for your beautiful insight, because you threw the light
how we can communicate to the different stakeholders, to the women groups, the self-help groups, basically the mentees and the entrepreneurs who are going to start their new journey. So after taking the training program from Dr. Mohite, I started, yes, let's start mentoring to these women entrepreneurs, those who are not getting any scope, those who are not getting the way, how they became involved and how they evolve themselves also in different segments. So this is all about me, and thank you so much. Whatever I have just gained from last 15 years, according to my experience, I'm going to present you. So as you know, that women entrepreneurship is such a beautiful concept for women empowerment. Because one second, I'm sorry to interrupt. If you would be able to mix up Hindi and English, that would be better. जरूर सर. तो आज जो हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें सर, पहले तो मैं माफी चाहती हूँ नाइदर, क्योंकि हम उड़िया लोग हैं और हिंदी में जब बोलेंगे ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा माफ कर देना. कोई इश्यू नहीं सर, आपका लैंग्वेज बहुत स्वीट है, डोंट वरी, एवरीबॉडी विल एंजॉय. ओके, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मैं दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके बोलूंगी. तो जो हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि मैं महसूस की, मुझे लगा क्योंकि एजुकेशन तो हमने दे दिया, लेकिन जब वुमेन को, एक महिला को, एक फीमेल को, एक गर्ल्स को एक अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है, जो हम बोलते हैं अर्थनैतिक स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस, अगर वो नहीं मिलता है, पैसा हमारे पास नहीं आता है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. इट कैन बी पॉसिबल. सो हमारे पास पावर होना चाहिए, दैट टू बी इकोनॉमिक का पावर, सो दैट वी कैंट बी डिस्क्रिमिनेटेड एनीवेयर. जब किसी के पास पैसा होता है, एक महिला के पास, उसका पावर ज्यादा बढ़ जाता है, नहीं तो वो हमेशा डोमिनेट फील करती है, हमेशा डिस्क्रिमिनेट फील करती है, कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, एंड अनसेफ भी फील करती है. सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट फॉर ए वुमेन, एक महिला के लिए. एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, मैं इंट्रोडक्शन में बोलना चाहती हूँ, टू पार्टिसिपेट इन ईच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सिर्फ हमारे पास पैसा होने से काम नहीं होता है, कैन बी कंप्लीट. सो अगर हर निष्पत्ति लेने का प्रक्रिया, जो भागीदारी का प्रक्रिया होता है, वहां पर अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा डिसीजन ले, कहेंगे कि मैं ये चाहती हूँ, मेरे मन में ये है, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, unless we just put forth our opinion in a public forum, in each sphere, there can't be they are economic independent. Otherwise what we are telling that women entrepreneurship can't be successful. तो एक women entrepreneur के लिए शिक्षा, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारिता, वो बहुत जरूरी है. तो so can I start my presentation? Can I share the PPT, sir? Yeah, you can share your presentation. Okay. Can someone share? I think there is some problem from my side. Share screen at the bottom you have got it? Yeah, but okay, let me try. Yeah, if you click that. Yes. Okay. You can open your presentation. Is it okay? Yeah, it's fine. Yes. Okay, so initially I just told you about the journey, whatever I have experienced from my side to see this lady, because and interestingly I want to share, whenever I just got connected with this women, the self-help group members in our Bhubaneswar area in different wards, basically it's a slum community, and the women, they got associated with having 10 to 20 women, and they sat together, and my role was to just make them capacitate for the legal for the literacy and for the IGP program, income generation activities. तो वहां पर जब मैंने
महसूस हुआ जब मैंने उनके साथ मतलब मिली, मुझे महसूस हुआ यस दे आर द ग्रुप, they are sitting in a month or fortnightly, they are just discussing among each other but they are doing nothing. मुझे लगा कि वो वहां पर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, मिलके बैठ रहे हैं, बस अपने आप कलेक्शन कर रहे हैं मंथली जो उनका जो पैसा होता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं. Then I suddenly started just asking them, why you are not doing any business, why you are not doing anything. So that time they said, मैडम हमको कुछ पता नहीं है, हम कैसे करें, कैसे शुरू करें, बैंक हमको फाइनेंस देने के लिए मना कर रहा है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे पास मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी का मतलब हमारे नाम भी नहीं है. सो इसलिए जो बैंक वगैरह जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट बिलीविंग अस. So that time I suddenly just discussed with our that is Suda State Urban Development Agency and Bhubaneswar Municipality Corporation. Let's start on women entrepreneurship. Let's work on women entrepreneurship. We have to make them capacitated. We have doing some capacity building training program. We have to give the hand holding support. सिर्फ ट्रेनिंग देने से तो नहीं होता है, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड होना चाहिए. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रूल्स रेगुलेशन से, बैंक का रूल्स रेगुलेशन से, उसके ऊपर भी काम होना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज सिर्फ सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट अगर इंफॉर्मेशन जानेंगे लेकिन बाकी सारे वुमेन्स they will remain silent, उनको कुछ मालूम नहीं होगा, तभी इकोनॉमी की एम्पावरमेंट नहीं आ पाएगा. So for women entrepreneurship, maybe for an individual person, maybe for a group of person, so each person must be participated in each aspect. सबको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है. So from that moment I just started to give teaching to all the self-help group members, even if the individual members also, so how they became self-sufficient, how they can get the information and knowledge. वो information कहाँ से पाएगा, knowledge कहाँ से पाएंगे, किसी के साथ टाइप करेंगे, वो बैंक जाकर कैसे कैसे बातें करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव्स क्या रहेगा, उनका जो बिजनेस प्लानिंग क्या होगा. So BYST is also doing a fabulous thing regarding the women entrepreneurship. So इसके साथ साथ ये मुझे लगा कि नहीं, अभी वो जरूरी होता है. उनको हम बोल देते हैं कि आपके लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी होता है, लेकिन हाउ दे कैन डू, where they can go, वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, अगर वो हम उन लोगों को नहीं समझाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. So nowadays Indian women are willing to accept challenge and assume responsibility in various sectors of the economy. Generally, they were engaged in conventional industries like food processing, textile, apparel sector, but recent study shows that women have been venturing into all the sectors like pharma, tourism, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. जो पहले से बॉयज का, जो मेल पर्सन का जो काम था, अभी सारे स्विच होकर नाउ वुमेन आर गेटिंग पार्टिसिपेटेड. बिकॉज वी नो वेरी वेल, इनिशियली हम अगर बोलेंगे तो जैसे कि जर्नी फ्रॉम 3K to 3P to 4E, तो 3K अगर हम बोलेंगे किचन, किड एंड निटिंग. सो इनिशियली महिलाओं के साथ क्या था, वो घर संभाल रहे थे, किचन में बस कुकिंग कर रहे थे, फिर निटिंग यानी कुछ स्टिचिंग वगैरह जो हम बोले सिलाई बोलते हैं ना, वो काम भी पहले एक कन्वेंशनल मेथड में वो सारे एंगेज थे. हम लोग को सोचना, मतलब हम क्या सोचते थे, यस नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ women are getting involved these things. Now from 3K to they switch to 3P. So धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर वो कुछ काम शुरू किए. So it is just confined like powder, पापड़ and pickles. कुछ मसाला, कुछ पाउडर, हम इसको सत्तू भी बोल सकते हैं, कुछ ये भी बनाते थे, फिर पापड़ और पिकल्स. एंड इंटरेस्टिंगली व्हेनेवर आई वाज आस्किंग, जब मैं पूछ रही थी उन लोगों को आप लोग क्या करना चाहते हैं, फिर वो बोलते हैं हम पापड़ बनाएंगे, हम अचार बनाएंगे, हम बड़ी बनाएंगे. ये जो छोटे छोटे चीज उसके दिमाग में मतलब घुस जाता है. जैसे कि आप अगर बोलेंगे कुछ कोई गांव की लड़की को अगर किसी को बोलेंगे अच्छा आप क्या बड़े होकर क्या करेंगे, तो वो बोलते हैं क्या बड़े होकर पढ़ाई करेंगे, फिर ससुराल जाएंगे, फिर बच्चे पालेंगे. ऐसे जैसे कुछ ट्रेडिशनल आंसर आ रहे थे. ऐसे
तो वो जर्नी फिर 3K से शुरू होकर 3P तक पहुंचा और नाउ इट इज 4E's। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, इंजीनियरिंग, ये सब में अब महिलाओं का भागीदारिता ज्यादा बढ़ गया है। बिकॉज नाउ वुमेन्स आर फीलिंग मोर एम्पावर। हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि बच्चे पालना, किचन में काम करना, कुछ सिलाई वगैरह करना, जैसे कि हम सेग्रीगेट कर देते हैं, ये महिलाओं के काम है, ये पुरुष का काम है। सो आज आई एम वर्किंग इन मेनस्ट्रीमिंग जेंडर एंड जेंडर इक्वालिटी। मुझे ये लग रहा है कोई काम, मतलब ये महिला और पुरुष का काम हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, सब काम में सब भागीदारिता रहना जरूरी होता है। Unless you participate in every work, there will be not equality। तो इक्वल जब हम सोशल ऑर्डर की बात करते हैं तब हम नहीं ला पाएंगे। एंड अगर हम एक स्टोरी कहेंगे कि द पीरियड ऑफ 1960s, अगर 1960s की बात करेंगे और वहां पर भी जब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात आया था, रितु कुमार एंड हर सक्सेसफुल जर्नी। आपको पता है इंटरनेशनल डिजाइनर है रितु कुमार, द फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन who brought a profound changes with establishing her brand regarding female entrepreneurship. She believed that India is a large issue of pure and artistic skills which can be utilized and help transform the status of Indian women. With her international experiences and delicate skill presence in Indian society, she took a step forward towards women entrepreneurship and start her brand in a small in city of Kolkata. So अगर हम बात करेंगे कि 1960s का, रितु कुमार was the very bright example for a successful entrepreneur and she started her journey was like that and she got succeed. Now we are just citing her example. In the period of 1970s, Kiran Majumdar-Shaw, it is the owner or founder of Bicon company having presence in 120 कंट्रीज। तो किरण मजुमदार को पहले लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कैसे करूंगी, कहां पर जाऊंगी, फाइनेंस कहां लाऊंगी, ऐसे सोच के देन शी स्टार्टेड हर वर्क। आज यू नो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां पर इच्छा शक्ति हो तो दुनिया का कोई भी काम हमको मतलब डिफिकल्ट नहीं लगता है, हर काम हमको आसान हो जाता है। और एक कहावत है, अगर आपका नियत साफ है तो विश्व ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपका साथ देगा। सो जस्ट लाइक दैट किरण मजुमदार has started her efforts how to establish the Bicon company, and luckily she got scope, she got the chance, she got finance from the different banks also, company also. So then she proved herself by establishing Bicon company which having presence जो 120 countries में उनका प्रेजेंस है। अगर हम पीरियड ऑफ 1980s का बात करेंगे तो बंदना लुथ्रा, यू नो वेरी पॉपुलर नेम ऑफ VLCC कंपनी, बंदना लुथ्रा कॉल्स एंड कॉप्स एंड बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी जो हैविंग प्रेजेंस इन 11 कंट्रीज। सो 11 कंट्रीज में जो उनका प्रेजेंस रहता है बंदना लुथ्रा का, वो करके दिखाए। क्योंकि ये जो नाम आज हम ले रहे हैं रितु कुमार का, किरण मजुमदार का, बंदना लुथ्रा का, दे प्रूव देमसेल्व्स nothing is impossible in this world if you fixed our target। अगर हमारा नियत साफ है, हम करना चाहेंगे तो कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता है। हाँ, लेकिन जर्नी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हम सबको पता है, क्योंकि जो काम सक्सेस हो रहा है, जो काम मतलब सक्सेस होने जा रहा है, इतना आसानी से वो काम नहीं होगा। सो हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक स्ट्रगल डे एंड नाइट। Unless we get succeed, we can't leave the path. So this is the story about Ritu Kumar, Kiran Majumdar and Bangla Luthra, and they proved themselves. Yes, we are the best. We did it, and we just make it possible in the field of women entrepreneurship. And after that, if you can tell regarding period of 1990s, अगर 1990 का हम बात करेंगे, so there is a rise of women entrepreneurs. Even if 196 women entrepreneurs overshadowed the industry. वहां पर 1990s में क्या हुआ था? The evolution, the rise of privatization, globalization, liberalization, मार्केट में बहुत सारे मतलब फूला पड़ा था। वहां पर FDI का भी एंट्री हुआ था, वहां पर बहुत मल्टीनेशनल MNC मल्टीनेशनल कंपनी का भी एंट्री हुआ था। सो
now the women entrepreneurship had started significantly, and it was a huge success due to the period of globalization and privatization. And as per a study of Edelgate Foundation, business owned by female entrepreneurs are likely to grow to 90% in next 5 years in India. So अगर हम एक स्टडी में देखेंगे कि एडेलगिट फाउंडेशन का नेक्स्ट 5 years में 90% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारा मतलब बढ़ जाएगा. A McKinsey study estimates women entrepreneurs to add $1 trillion to the Indian economy by simply leveling the playing field for them. So ये जो डाटा कहता है, उनका जो स्टडी कहता है, नाउ मतलब धीरे धीरे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा जर्नी शुरू होता है वहां पर धीरे धीरे सक्सेस हो जा रहा है. इवन इफ की यू कैन सी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब भुवनेश्वर में हम जाते थे, मॉल जाते थे, कहीं पर एक दुकान भी जा रहे थे घूमने के लिए, मार्केट करने के लिए, सो यू कैन फाइंड सो मेनी यंगस्टर्स, यंग गर्ल्स, they are just solving, they are just engaging themselves. Yes, so that time I just felt happy. Oh my God, yes, now the situation has been changed a lot. बहुत सिचुएशन चेंज हो गया है. अब धीरे धीरे कोई 10वीं तक पास हो, कोई +2 इंटरमीडिएट, कोई ग्रेजुएट हो, वो चाहता है नहीं मैं कुछ करूं. सिर्फ सर्विस के सेक्टर में नहीं, कुछ भी. अगर मुझे सिलाई पसंद है तो मैं एक टेलर भी, टेलरिंग के काम भी कर सकती हूँ. अगर मुझे पार्लर मतलब कुछ ब्यूटिशियन का इंटरेस्ट है, मैं एक पार्लर भी बना सकती हूँ. अगर मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक है तो मैं कुछ कोचिंग सेंटर वगैरह या होम ट्यूटर वो भी स्टार्ट कर सकती हूँ. अगर मुझे सेल्स इंटरेस्ट है, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है, कोई भी चीज, बट women must participated in each aspect. So they have to get the economic power so that they can prove themselves and they can feel any hurdles. वो जो जिंदगी में चुनौतियां आता है, जो चैलेंज आता है, अगर हम खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे तभी हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे. हमेशा ये जो पैट्रियार्कल सोशल ऑर्डर, जो पैट्रियार्क सोसाइटी जब हम बोलते हैं पुरुष प्राधान्य समाज में, हमेशा हमको दब के रहना पड़ेगा. So that's why women entrepreneurship, women leadership, economic independence for a girl, for a young girl, for a woman is very much important. So it was the status, whatever I have just presented. मैंने जो प्रेजेंट किया ये एक छोटा सा स्टाटस था आपके सामने, जो कैसे कैसे उन लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ और आफ्टर 90s धीरे धीरे कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब वो जो जर्नी इतना जोर से अब शुरू हुआ है और कितना तक भी पहुंच गया है. अगर हम देखेंगे अभी क्लास एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सो एक क्लास अगर हम बोलेंगे, वुमेन इटसेल्फ है क्लास, and now we are treating women as a second class entrepreneurship. मैं जेंडर के ऊपर काम करती हूँ. अगर मैं बोलूंगी अभी भी महिलाओं की एक क्लास है, वो अभी भी पुरुषों के मतलब बराबर नहीं रहते हैं, अगर उनको इतना अधिकार भी नहीं मिलता है. अगर आप लोग भी बहुत मतलब वहां पर जो होता है, मैं सबके बारे में तो नहीं जानती हूँ. आप लोग यू आर वेरी एजुकेटेड पर्सन एंड आपके पास जेंडर इक्वालिटी बहुत है. लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, जब हम स्लम एरिया में जाते हैं, जब हम अर्बन पुअर के पास जाते हैं, आपको यकीन नहीं होगा. तो वही सेम डिस्पैरिटी, तो वही मतलब महिला अगर कुछ कमाएगी भी, फिर भी उनका अधिकार और उसके ऊपर अधिकार पुरुष का होगा. ये इट्स अ जनरल फेनोमेना, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर एज यू नो. सो मेरा कहना कि मतलब ये है, सिर्फ महिला को एक जो क्लास की दर्जा हम देते हैं, वो सेग्रीगेशन क्यों है? व्हाई दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी? हम बोलते हैं यस जेंडर इक्वालिटी चाहिए, वुमेन एम्पावर होना चाहिए, उनका सब में बराबरी का हक होना चाहिए, वो सब में बराबर अधिकार होना चाहिए, एंड दे आर द मेन पिलर्स ऑफ द सोसाइटी. एक बहुत बड़ा हम जो बोलते हैं जो स्तंभ होता है, हम भी ऐसे बोलते हैं. लेकिन स्टिल व्हाई दे आर डिस्क्रिमिनेटेड? उनको क्यों इतना स्कोप नहीं मिल रहा है? आप एक खुद ही एक बोलिए, एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहती हूँ, आपके घर में कौन कौन कमाता है, कितना कमाता है और आप कितने कमाते हैं, और सबका क्या बराबरी क्या हक होता है?
It's a general question to everyone. So yes, so while just interacting with the women, जब हम बात करते हैं महिला के साथ बात करते हैं, उन लोगों के साथ बात करते हैं, तो इंटरेस्टिंगली मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगी। एक बस्ती में मैं झोगी झोपड़ी में जब मैं काम कर रही थी, तो एक महिला का एक दुकान था, जो इसको हम राशन का दुकान बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप बोलते हैं। तो हम इंटरेक्शन कर रहे थे एक केस स्टडीज के एनालिसिस तौर पर। उनका नाम है मौसमी महांती। तो मैंने बोला, मौसमी दी कैसा चल रहा है आपका दुकान? बहुत बढ़िया है, आपने तो खुद इतना इनकम भी कर रहे हैं और आपके बच्चे को अच्छे से लालन पालन भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी दे रहे हैं, लेकिन कितना रोजगार होता है, आप तो बहुत खुश है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब हो गए आप लोग। तो उसने कहा, हाँ मैं कमाती हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। मेरा हस्बैंड वो ले जाते हैं हर महीने सारे पैसा और वो मुझे देते हैं। बट वो महिला दिन रात दुकान में बैठती है, वो काम करते हैं और उनका हस्बैंड कहीं पर एक छोटा सा नौकरी करते हैं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि हकदारी की, मतलब जो ओनरशिप की बात यहाँ करते हैं, वहीं पर एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाते हैं। सिर्फ क्लास की नहीं, हम कास्ट की भी बात करेंगे, हम रिलीजन की भी बात करेंगे, वहीं पर भी जब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, वहीं पर डिवीजन शुरू हो जाता है। According to studies, it is estimated that 90% of women entrepreneurs do not have access to finance from formal financial institution. अगर हम देखेंगे कि 90% वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स एंड दैट अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर फाइनेंस नहीं मिलेंगे उनको, तो वो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, वो कैसे कर पाएंगे? ये हालत है हमारा आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का। जब हम बात करते हैं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बैंक को ना वो उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या ओनरशिप नहीं है, प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं है, लैंड ओनरशिप नहीं है। सो दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। Unless they get the financial independence, unless they have the financial power, how they can start the business? अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा, अगर उनके पास ज्यादा फाइनेंस नहीं होगा, तो वो कैसे काम करेंगे? वही तो दिक्कत है ना। एक काम शुरू करने के लिए, एक एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, एक बिजनेस शुरू करने के लिए उनका पास फाइनेंस की बहुत जरूरी होता है। वो कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो गैप महसूस हो रहा है बिटवीन द वुमेन एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको कैसे मिटा जा सकता है, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। तो अभी जो परसेप्शन था, नहीं वो वुमेन लीडरशिप नहीं ले पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो अगर एक महिला एक अच्छे से घर संभाल सकती है, जो हस्बैंड पैसा देता है वहां पर कुछ बचा के वो एक अच्छा सा बिजनेस भी बना सकता है। वो आराम से, मतलब अगर बच्चों का देखभाल कर सकता है, घर चला सकता है, किचन काम चला सकता है, हाउस होल्ड कोर्स में हाथ बढ़ा सकता है, डोमेस्टिक काम भी कर सकती है, वो क्यों नहीं कर सकती है बहुत अच्छे से बिजनेस? वो एक अभी समय आया, एक टाइम आया, वी हैव टू थिंक। जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप, जो बुद्धिजीवी लोग आप सब लोग बैठे हैं ना, वहां पर भी चिंतन करने का आवश्यकता है। देन बाय द ईयरली 2000, the lack of capital resulted in around 7% women-led MSME becoming sick and then closed down. अगर साल 2000 की बात करेंगे, तो जो अराउंड 7% वुमेन जो MSME का लीड कर रहे थे, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहा था। And this is the situation. It is also happening because there is so many regions, there is class, there is caste, there is religion. And here we can say that अगर एससी और एसटी कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे, जो दलित वर्ग हम बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वुमेन, जो सोसाइटी के थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं, एंड वी आर जस्ट टेलिंग दैट दे आर द मैचिंग, दे आर कमिंग ऑन द मार्जिनल कम्युनिटीज। सो एससी एंड एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स constitute only 19% of the total entrepreneurs, where other backward castes and forward caste constitutes 81%. अगर हम देखेंगे, जब
ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट, अगर वो 81% कास्ट मतलब वुमेन लीडरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वहीं पर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वो सिर्फ 19% कैरी करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सोशली डिस्क्रिमिनेटेड एंड दे आर जस्ट डिस्क्रिमिनेट देमसेल्फ, नॉट ओनली फ्रॉम द एजुकेशन, फ्रॉम ऑल द सोशल एस्पेक्ट्स। क्योंकि अगर हमारे गांव में एक हरिजन का जो बस्ती है, जो एक आदिवासी का बस्ती है, उनके पास शिक्षा इतना नहीं जाता है, हम लोग उनको मेनस्ट्रीमिंग में शामिल नहीं करते हैं, अभी भी वो अछूत है, अभी भी वो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर। अभी सोसाइटी का वही स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दे आर डिप्राइव्ड टू गेट ऑल द एवेन्यूज, टू गेट ऑल द एंटरटेनमेंट्स। अभी इसीलिए सारे सुविधा सुयोग से वो लोग वंचित है, क्योंकि उनके पास इतना स्कोप हम नहीं पहुंचा रहे, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो विद द पीपल। So it's the high time to think about themselves. वो कैसे आगे आ पाएंगे? एक तो महिला आगे नहीं आ पा रहे, फिर SC ST कम्युनिटी जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, वो कैसे आ पाएंगे? हम लोगों को अभी चिंता करना पड़ेगा। Again, we are coming that other segments, that is Muslim women constitute only 13% of the total entrepreneurs. अगर हम बातों करें मुस्लिम महिला की, तो आप लोग को सब लोग को पता है वो माइनॉरिटीज में आते हैं, वो आगे नहीं आ पाते हैं, इसीलिए उनका भागीदारिता सिर्फ 13% रहता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। मेरा एक दोस्त है जो अफगानिस्तान में रहता है, अभी तो अफगानिस्तान का सिचुएशन बहुत खराब है, नाउ ही शिफ्टेड टू USA और कोई कंपनी में काम कर रहा है। सो एक दिन मैं बात कर रही थी उनके साथ, तो मैंने कहा आपके घर में कौन कौन रहता है? सो उसने बोला हमारे परिवार में 23 members है, having 5 to 6 brothers and sister-in-laws। तो मैंने कहा सब लोग क्या करते हैं? हाँ, हम भाई सब काम करते हैं, लेकिन एक भी महिला वो काम नहीं करते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं काम करते हैं? उसने कहा ये एक सिचुएशन अफगानिस्तान में है, आपको थोड़ा अजब लगेगा, क्योंकि उनका परसेप्शन वो बता रहे थे, नहीं वो क्यों काम करने का जरूरत है, बिकॉज वी आर जस्ट अर्निंग सफिशिएंट ना, वी आर जस्ट पेइंग देम व्हाटएवर दे वांट, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग। सो उस टाइम मैंने उनके साथ थोड़ा सा बातचीत की, तो वो सिर्फ महिला का काम क्या ये नहीं है कि किचन में घुसना, बच्चे को संभालना, बच्चा पैदा करना, घर में रहना, सास सवर होके रहना, ये नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं सच में कुछ करने के लिए, लेकिन उनका जो मतलब इच्छा शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? आप लोग करेंगे। एक बार पूछिए तो वो सच में चाहते हैं नहीं पढ़ाई करने के लिए, वो सच में चाहते हैं नहीं कुछ काम करने के लिए। सो ये डिस्कशन हो रहा था। तो ये मुस्लिम महिला जो है, यहाँ पर उड़ीसा में बहुत सारे दोस्त हैं, वहीं पर सेम नहीं वो घर में अच्छे लगते हैं, वो घर में रहना चाहिए, हम लोग तो काम करते हैं ना। सो ये जो माइंडसेट है, ये जो जनरल परसेप्शन है, वी हैव टू ब्रेक दिस सीलिंग ग्लास सीलिंग। सो ये सारे हमको ब्रेक करना चाहिए। उनको जो हम मेनस्ट्रीमिंग करेंगे, उनको आगे लाएंगे, उनको एजुकेशन भी देंगे, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी देंगे, कैसे वो रोजगार करेंगे, कैसे खुद को भी हेल्प करेंगे, और आगे जाकर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी दिक्कत आया, तो वो सामना कर सकेंगे सोसाइटी को। दे कैन फीड देयर चिल्ड्रन, दे कैन फीड देयर पेरेंट्स, दे कैन इजीली जैसे कि आजीवन का तरी जो बोलते हैं ना, नाव जो, वो अच्छे से बहा सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो ST SC एंड मुस्लिम कम्युनिटी, वी हैव टू मेनस्ट्रीमिंग देम। उनके बारे में हम सोचेंगे, उनके बारे में हम कैसे आगे उनको ला सकते हैं और अच्छे से उनका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, ये भी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। Thus, some proprietors from marginalized groups like SC, ST and Muslims suffer from the double discrimination of being women and belonging to a depressed caste or tribe. So, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्लास की, पहले तो वो महिला है, वो एक डिस्क्रिमिनेशन है, और सेकेंड में वो डिप्रेस्ड कास्ट एंड ट्राइब में मतलब बिलोंग करते हैं। सो ये जो दोनों सेग्रीगेशन है, उसको ओवरकम करके कैसे ज्यादा इंक्लूजन हम कर पाएंगे, ज्यादा भागीदारिता हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारा आज का डिस्कशन है। वो कैसे हम करेंगे, वो भी चर्चा का विषय है।
Then just coming the third slides, that is barriers in inclusion. ये reality check. आप सब लोग को पता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या बैरियर्स होता है, क्या प्रतिबंधक होता है, क्या ऑब्स्टैकल्स है, क्यों वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज है। तो हमारे डिस्कशन में काफी सारे पॉइंट भी मैंने आपको कहा है। मे बी यू पीपल जीनियस पीपल विल एग्री विथ मी और मे बी यू हैव आल्सो अदर पॉइंट्स। स्टिल जो पॉइंट मेरे पास है मैं आपके साथ थोड़ा बांटना चाहूंगी। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर हम बात करेंगे कि वो जो मैंने कहा कि अगर एक महिला के पास फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा उसके पास, फिर वो क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। बिकॉज मैं कुछ सोचती हूँ काम करने के लिए, मैं कुछ शुरू करूंगी, मैं एक बिजनेस शुरू करूंगी, मैं एक एंटरप्राइज शुरू करूंगी, लेकिन मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो कोई बैंक मुझे नहीं दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर मैं कैसे करूं। So Indian women don't have property or assets in their name, even if the land records. So that is the major gender bias. सब पुरुषों के नाम है, उनका हस्बैंड के नाम है। एक अगर हस्बैंड के नाम है, पुरुष के नाम है, महिला के पास कुछ प्रॉपर्टी का और एसेट का, कुछ लैंड्स का रिकॉर्ड नहीं है, उनके नाम है, सो फिर उनको कौन पैसा देगा। ठीक है। सो एक बिलीव होता है अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है, सो यू कैन प्रोवाइड द मनी। सो द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज द मेजर कंस्ट्रेंट टू स्टार्ट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम कुछ शुरू करना चाहेंगे, बिना पैसे से तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरे पास पैसा है मैं आराम से शुरू कर सकती हूँ, अगर पैसा नहीं है मुझे पैसा लाना पड़ेगा, तो कहाँ से लाएंगे हम पैसा। ओके, सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। And the second point is lack of social and institutional support, absence of proper mentors and guidance. जैसे कि मैं बता रही थी, and luckily I got associated with BYST, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, where Dr. Mohite was the key resource persons and guiding us. And वहां पर जाकर मुझे महसूस हुआ why mentors is very much important for a mentee, for a entrepreneurs. मेंटर्स, जो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है और गुरु शिष्य परंपरा होता है, एक बिना गुरु में अगर हम कुछ कर पाए, यस कुछ करिश्मेटिक एंटरप्रेन्योर्स है जो खुद कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ महिला है, ऐसे कुछ लेडीज फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है जो चाहते हैं सच में कोई हमको सपोर्ट करे, कोई हमको गाइड करे, कोई हमको मेंटरिंग करे। तो अगर प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा और उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा, ताहले वो जरूर कुछ कर पाएंगे। सो सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सोसाइटी and from the institution. So just I have the bright example of BYST that what is doing the best guiding support and is doing the best mentorship through different mentors. Though they have a pool of mentors, they are guiding the mentorship not only the female to the male also, and the sections what maybe we can say that is uneducated, थोड़ा सा लिटरेट है और उनके पास कुछ एवेन्यूज नहीं है, उनको अच्छे से मेंटरशिप करके they are proving themselves. Lack of awareness, initiatives and schemes by government and financial institutions. गवर्नमेंट के पास और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे इनिशिएटिव रहता है, बहुत सारे स्कीम भी रहते हैं। बिकॉज जो स्कीम उन लोगों को पता नहीं है, वो फिर क्या कर पाएंगे और कैसे जा पाएंगे। एंड इंटरेस्टिंगली सबसे एक बहुत बड़ा जो पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट का जो बहुत सारे स्कीम आता है, लेकिन वो जो स्कीम पहुंचते पहुंचते वो आधे रास्ते में अटक जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको कह सकती हूँ, एक जो ग्राम पंचायत होता है हमारा रूरल एरिया में, ग्राम पंचायत में बहुत सारे स्कीम आता है महिलाओं के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। वहां पर पल्ली सभा भी होता है, वहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेशन होता है कुछ, लेकिन जब वो जाते हैं कुछ नहीं बोल पाता है। वहां पर जो सारे मेल पर्सन होते हैं, जो गांव की जो पुरुष लोग हैं, वो ज्यादा बोलते हैं, वो अपने आप सब डिसीजन लेके भाग जाते हैं। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है, कुछ इनिशिएटिव होता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनी, वो स्कीम और वो इनिशिएटिव कैसे
प्रो वुमेन होना चाहिए, जैसे कि महिलाओं के पास होना चाहिए, उनके पास पहुंचना चाहिए, ये इसका थोड़ा इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनिशिएटिव एंड स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है हमारा मतलब women entrepreneurship में। Stiff competition in canvassing and advertising their product and service due to financial crisis। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मार्केटिंग की बात। अगर मार्केटिंग की बात हम करेंगे तो वहां पर जो सारे प्रोडक्ट का नॉलेज हो, जो सारे गाइडलाइंस हो, वो जरा जो जितना सर्विस हो वो ठीक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाता है, वो ठीक तरह से मार्केट में नहीं पहुंच पाता है। उनका जो कहता है एक प्रॉपर जो अवेयरनेस ना वो लोगों के पास नहीं पहुंच जाता है। इसीलिए वो सारे कंपटीशन में महिला कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए उनका प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉपर प्रोपागेंडा कैसे अच्छी तरह से प्रसार का कैसे अच्छी तरह से हो पाएगा, ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज द स्टीप कंपटीशन बिटवीन द वुमेन एंटरप्रेन्योर and male entrepreneur. So we have to give the support, we have to make the space and make the mechanism, that's why they can prove themselves and they can do the proper advertisement of their products. Pressure to stick on traditional gender role. Initially, we have also discussed about the cooking, taking care of children and aged, busy in domestic chores. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दूंगी। अगर मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ वो दोनों काम करते हैं, वो घर को मतलब शाम होते तक 6:30 या 5:30 वो दोनों घर को आते हैं। तो आप बताइए एक पुरुष लोग क्या करता है और एक महिला क्या करता है। ज्यादातर आप लोग को पता है एक महिला आएगी, वो बस कपड़ा चेंज करके, साड़ी या ड्रेस चेंज करके किचन में घुसेगी, वो चाय बनाएगी, वो शाम का टिफिन बनाएगी, फिर सबको सर्व करेगी, फिर बच्चे को पढ़ाएगी। अगर ट्यूशन सर नहीं आते हैं फिर रात का किचन में घुसेगी, रात को डिनर प्रिपेयर करेगी, सबको खाना देगी। बस वो काम हर दिन चलता रहता है। बट सेम टाइम उसका हस्बैंड अगर आएगा उस टाइम तो वो क्या करता है वो देखने की जरूरी होता है। सो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ये ले जाते हैं एक महिला है वो काम करेगी, किचन में कुकिंग भी करेगी, हाउस होल्ड कोर्स भी वो काम करेगी, डोमेस्टिक वर्क भी करेगी, बच्चों को संभालेगी। अगर कुछ बुजुर्ग लोग हो, जो सीनियर लोग है घर में, एजेड लोग हो, उनको भी देखभाल करेगी। तो ये सेग्रीगेशन जब हम कर लेते हैं ना, उसको हम जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं कि काम के दौरान पर जो सेग्रीगेशन होता है वो अभी भी चल रहा है। वो एक पुअर फैमिली में हो, एक एजुकेटेड फैमिली हो, ये माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये परसेप्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दिस इज द टोटल पैट्रियार्कल सोशल ऑर्डर इन आवर सोसाइटी। सो वी हैव टू ब्रेक दिस साइलेंस। हमको ये कहना जरूरी होता है, हम दोनों साथ में आए, दोनों काम भी किए, वो सेम आवर पे काम किए। हम दोनों का काम है घर को संभालना, बच्चे को संभालना, हाउस होल्ड कोर्स में हाथ बढ़ाना। और जब तक ये नहीं हो पाएगा, हम जितने जोर से चिल्लाएंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी महिला थोड़ा सा भी आवाज देगी, ये आपका भी काम, आप थोड़ा हेल्प करेंगे, फिर बहुत सारे घर में तो महाभारत मतलब शुरू हो जाएगा। तो ये जो माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट, ये जो होता है ना, जो डिवीजन, काम का डिवीजन, हमको थोड़ा मतलब सोचना चाहिए। और हम वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली। हम खुद से शुरू करेंगे, अगर थोड़ा सा काम में हाथ बढ़ाएंगे तभी जाकर वो आराम से बहुत सारे काम भी कर पाएंगे और एक अच्छा महसूस होगा। ये सबका काम है, ये घर का काम सबका काम, ये तुम्हारा काम नहीं और ये मेरा काम नहीं। सो दैट्स व्हाई अगर हम कहेंगे कि ये अगर हो पाएगा, ये माइंडसेट में अगर चेंजेस हम ला पाएंगे, मानसिक स्थिति में अगर परिवर्तन हम ला सकते हैं, तभी जाकर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स की जो महिलाओं की जो भागीदारिता की बात करते हैं, तभी जाकर सफल हो पाएगा। Limited industry knowledge. Women have less access to industry contact, mechanism and technology. हाँ, ये सही है। अगर हम इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहेगा, ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहेंगे और क्या क्या मैकेनिज्म
चल रहा है, अपडेट इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है, कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, अगर इसके बारे में अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तभी हम मार्केट में कम्पीट कभी नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू मेक अपडेट regarding the mechanism, the process, the updates, the new technology and having lots of contacts also. ये होना बहुत जरूरी होता है. सो ये थोड़ा सा लिमिटेड है, अभी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे लिमिटेशन है. सो दैट्स व्हाई इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन यानी भागीदारिता नहीं आ पा रहा है. एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, नेगेटिव स्टेरियोटाइप माइंडसेट, women are not fit for any leadership role. एक होता है ना, क्योंकि मैं भी, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब मैं एडोलसेंट एज में थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, अगर कुछ मैं करना चाहती थी, मेरा पापा भी बोलते थे हाँ ठीक है तू तो ये कर पाएगी, लेकिन फिर भी ना तू घर काम थोड़ा सा सीख ले, क्योंकि आगे जाकर ना तुझे बहुत हेल्प हो पाएगा. लेकिन मैं कभी नहीं करती थी, डांट भी खाती थी. लेकिन यस, I'm lucky enough that my father has given me so much opportunity. That's why I'm here today and I'm able to speak something regarding women entrepreneurship and I'm the bright example. So अभी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था हाँ मुझे भी ये एक्सपीरियंस है, मैं भी वही रास्ता पे गुजर के आई हूँ. एंड मैं तो लकी हूँ, मैं तो उभर आई, मैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे. लेकिन बहुत सारे मेरा दोस्त अभी भी वही कर रहे हैं, अभी भी ससुराल में है, अभी भी वही बच्चे को पालना, वही घर के काम करना, वही मतलब बहुत एजुकेटेड भी है, बहुत मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. अगर वो चाहते थे ना, वो बहुत कुछ कर सकते थे. तो वो जो स्टेरियोटाइप माइंडसेट अभी भी है, लड़की ये करेगी, लड़का वो करेगा, लड़की के अंदर लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है. बट यू नो वेरी वेल देयर आर सो मेनी women, they prove themselves that yes, हम भी किससे कम नहीं, हमारे पास वो दम है, हमारे पास वो ताकत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम भी दिखा सकते हैं. लेकिन who will provide the opportunity? उन लोगों को कौन अपॉर्चुनिटी देगा, कैसे वो लोग को एम्पावर हो सकते हैं? ये सिर्फ गवर्नमेंट का सोचना नहीं है. आप लोग जो इतने सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लाइक FIFP, FIF हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सुंदर प्रयास कर रहा है. सो आई एम फीलिंग प्राउड ताकि मैं लकीली कनेक्ट हो गई है, आज मुझे कहने के मौका मिल रहा है आप सब लोग के पास. सो इसलिए हर एक लड़की को जो चाहता है अपना आवाज देने के लिए, अपना आवाज पहुंचाने के लिए, जो कि सारे मतलब दूसरे महिलाओं के पास पहुंचे, हम सब लोग को चिंता करना ये जरूरी होता है. how we can make them empowered so that they can speak something, they can explain whatever they have in their mind. ये सब अभी सोचना चाहिए. और जो नेगेटिव स्टेरियोटाइप माइंडसेट जो हो रहा है, जे अभी वो लीडरशिप नहीं ले पाएगी, वो तो अबला है, वो तो दुबला है, उसके पास तो इतना ताकत नहीं है, वो लड़की है, वो नमीसी है, वो सेमसी है, ये जो मतलब माइंडसेट ना, उसको थोड़ा हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा. तभी जाकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस आ पाएगा एंड लड़की और महिला दे कैन प्रूव देमसेल्व्स. वो हम अच्छे से कर पाएंगे और पूरे जिम्मेदारी होश आवाज के साथ हम लोग कर पाएंगे. Then personal challenge to be chosen between career and family. So ये ज्यादातर आफ्टर मैरिज अगर हम कहेंगे विवाह के बाद होता है. ज्यादातर अगर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अगर आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे इंडिपेंडेंस भी चाहिए, मुझे थोड़ा काम करने का मौका भी चाहिए. कभी कभी ये सोचना पड़ता है, परिवार लोग बोल देते हैं, ससुराल लोग नहीं तुझे एक को चुनना पड़ेगा, आइदर फैमिली और कैरियर. ठीक है, ये बहुत सारे, ये तो मतलब मुझे लगता है 60 to 70% घर में अभी चल रहा है. और बहुत कम हस्बैंड हो, बहुत कम इलस फैमिली हो जो सारे सपोर्ट देते हैं, उनका संख्या बहुत कम हो. तो इसीलिए ये जो माइंडसेट और ये जो मतलब एक जो धारा चल रहा है, उसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा. अगर शादी के बाद एक हस्बैंड अगर प्रोफेशन चेंज नहीं कर रहा है, वो चूज नहीं कर रहा है फैमिली और कैरियर के मतलब दोनों को एक जो चुनना, मतलब उसके पास कुछ ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो एक लड़की के पास, एक महिला के पास क्यों ऑप्शन रहता है? Why I am just considering myself as a scapegoat. मुझे क्यों स्केपगोट बनना पड़ेगा? मैं क्यों चुनूं?
सिर्फ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी, क्योंकि मैं बच्चा पैदा कर पाऊंगी इसीलिए, और मैं जाकर सास ससुर और सबका ख्याल रखूंगी और ये हस्बैंड का जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए जो ये पर्सनल चैलेंज रहता है, बाहर जाना, तुम्हारा सेफ्टी के लिए बाहर जाना जरूरी मतलब ये जरूरी होता है, तुम बाहर नहीं जा पाओगे। अगर आधी रात को आ रहे हो तो सेफ्टी का ये भी चैलेंज रहता है, मोबिलिटी का प्रॉब्लम भी रहता है। तो एक लड़की के लिए सारे प्रॉब्लम क्यों आता है और कब कब तक रहेगा, ये अब चिंता करने का समय होता है। तो जब तक ये हम चिंता नहीं करेंगे कि ये उसके लिए कुछ बैरियर रहना नहीं चाहिए। जो चाहता है वो खुल के अपनी मतलब आराम से वो जी सके, उसके पास पंख है, वो उड़ सकती है, वो आसमान को छू सकती है और वो अपना कैरियर चूज कर सकती है। और कभी कभी आप लोगों को पता है जैसे कि हम मतलब जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं ना, कुछ काम करने के लिए मन करता है, कोई रोजगार को हम ढूंढते हैं, नौकरी करने के लिए मन होता है, तो ज्यादातर फैमिली क्या कहते हैं, हाँ वो टीचर होगी, वो नर्सेस होगी, नहीं तो और कुछ थोड़ा सा सब काम ऐसे कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसे नहीं सोचता है इतना ज्यादा। अभी तो थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया है। अगर हम रूरल की बात करेंगे, नहीं वो अगर डिफेंस में जाएगी, पुलिस में भी ज्वाइन करेगी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू भी हैंडल करेगी, वो थोड़ा सा लाने के लिए माइंडसेट अभी भी हम कोसों दूर है, वो भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लड़के सब कर पाएंगे, हमारे पास वो दम है, वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो कोई हमारे पास कोई चैलेंज नहीं रहेगा। हाँ चैलेंज रहेगा अच्छे करने के लिए, जो खुद को प्रूव करने के लिए और द बेस्ट करने के लिए। अगर ये चैलेंज दिया जाएगा, सो वी हैव ऑल दैट पावर, वी हैव ऑल दैट कैपेसिटी एंड वी हैव all that positive forces, positive attitudes to get the positive results. हमारे पास वो दम है, हमारे पास वो सारे शक्ति है, हमारे पास वो सारे ताकत है, हम करके दिखाएंगे। लेकिन for that reason she has provided, she must be provided a very conducive, proactive and positive atmosphere. एक अच्छा सा एटमोस्फियर, एक पॉजिटिव एटमोस्फियर, एक अच्छा सा गाइडेंस, उसको प्यार मोहब्बत की जरूरत होता है। क्योंकि वो लड़की है, उसको हम थोड़ा सा अगर आगे ले जा पाएंगे, एक परिवार नहीं एक विश्व का हमारा क्या मतलब नंबर 1 हम भी बना सकते हैं। सो इसीलिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और महिलाओं का इंक्लूसिवनेस, जो उनका जोड़ने का जो भागीदारिता हम कहते हैं, हम कैसे इंश्योर करेंगे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली। हम परिवार से शुरू करते हैं। मेरा वाइफ क्या चाहती है? वो एक्चुअली सच में पढ़ाई करना चाहती है, वो काम करना चाहती है, वो रोजगार करना चाहती है? कभी पूछिए ना, कभी बैठ के डिस्कशन कीजिए, मेरा लड़की किस दिशा में जाना चाहती है, उसका मन क्या है? वो पुलिस में जाएगी, वो डिफेंस में जाएगी, वो डॉक्टर करेगी, वो इंजीनियर में जाएगी, वो बिजनेस करेगी, कुछ भी। So you have to discuss। जब हम डिस्कस करेंगे, हमारे घर से शुरू करेंगे, मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो एटीट्यूड, ये जो माइंडसेट, ये जरूर चेंज हो पाएगा। And my last that presentation was deconstructing the social construct। जैसे कि हम डिस्कशन किए थे, बहुत सारा कंस्ट्रक्ट है, बहुत सारा ऑब्स्टेकल है। जहां पर प्रॉब्लम नहीं है वहां पर तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन हम ढूंढ पाएंगे ना। तो इसीलिए सारे सोशल कंस्ट्रक्ट के बाद there is a ray of hope because it has already started in the 1990s where 196 the women entrepreneurs has been emerged, has been evolved, जहां पर वहां पर शुरू हुआ था। तो इसीलिए धीरे 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 समय भी बदल गया। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगी, जैसे कि पैंडेमिक कोविड-19 का समय था, वहां पर कितना तकलीफ था, कितना डिफिकल्ट था, जिंदगी तो बहुत सारे जीवन भी चला गए, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हमको आ गए, लेकिन धीरे धीरे वी हैव टू कोप आवरसेल्व्स विद द सिचुएशन। अभी धीरे धीरे हम सिचुएशन के साथ कोप कर लिए। अगर अभी छींक होता है, खांसी होता है, भूकर आ जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, ओके कुछ नहीं होगा, हम कुछ मेडिसिन खा जाएंगे, धीरे वेपर ले जाएंगे, थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन ले जाएंगे तो आराम से हो पाएगा। इसीलिए अगर सोशल कंस्ट्रक्ट आ रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो धीरे धीरे कैसे उसका समाधान हमको ढूंढना चाहिए, ये सबके ऊपर हम काम करेंगे। द जनरल सोशल अंडरस्टैंडिंग इज दैट वुमेन आर पुअर एंटरप्रेन्योर्स एंड इट्स नॉट ए फैक्ट। जब लोग बोलते हैं जिससे महिला वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो करेगी तो क्या करेगी, बस वो कुछ
एक छोटा मोटा काम में उनको लगा दो, वो कर पाएंगे। लेकिन not like that, because like Ritu Kumar, like Monisha Majmudar, like Bandana Luthra, अगर वो प्रूव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? So we have to create crores and crores Bandana Luthra, Monisha Majmudar and रितु कुमार। सो हम लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर एक गांव की, एक बस्ती की, एक झोपड़ी झोपड़ी को, एक 2-4 महिला को अगर हम बेस्ट एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नाम तो एक बहुत बड़ा लगता है, जैसे कि सुनने में बहुत अच्छा साउंड लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, अगर कोई भी महिला एक दिन में 100 रुपया भी वो खुद इनकम कर पाती है, सो आई थिंक दिस इज ए ग्रेट चैलेंज फॉर अस। सो इट्स नॉट ए फैक्ट। जो सारे लोग बोलते हैं नहीं महिला वो इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको हम रंग प्रूफ कर देंगे। इन इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट सक्सेसफुल एंड डिजायरेबल। मुझे लगता है कि इंडिया एक ऐसे देश है, एक ऐसे कंट्री में जहां पर सारे सुविधा है, यहाँ पर ज्यादा नदी है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर खनी है, यहाँ पर खादान है। हैविंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस we can do wonders। हमारे पास इतना सारा सुविधा है, सारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारा इच्छा शक्ति है, एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल पर्सन्स आर हियर। अगर हम चाहेंगे तो वो सारे हम यूटिलाइज करके हम डेफिनेटली हमारा जो महिला शक्ति को, नारी शक्ति को सारे एंटरप्रेन्योरशिप में हम जबरदस्त उनका मतलब सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन जो लोगों का जो परसेप्शन है, नहीं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे थोड़ा मौका देख के तो आप दिखिए ना, वो कितने आगे जा सकते हैं, कितना अच्छे से उसको खुद को प्रूव कर सकते हैं। सो ये नियत की मतलब कमी है, ये जो इच्छा शक्ति की कमी है, थोड़ा हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। दे कैन डू वंडर्स, दे कैन डू मिरेकल्स, दे कैन प्रूव देमसेल्व्स एज ए बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन दिस वर्ल्ड। एंड ये भी परसेप्शन देखता है वुमेन कैन नॉट डू बिजनेस ऑन देयर ओन। वो कैसे कर पाएंगे अगर उनके पास प्रॉपर्टी का मतलब उनके नाम नहीं है, अगर उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास लैंड राइट्स का अधिकार नहीं है, तो वो खुद कैसे कर पाएंगे? आप थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, उनके मतलब उनके नाम कर दीजिए आप सारे जो अधिकार होता है, जो लैंड रिकॉर्ड्स होता है, जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स होता है, थोड़ा देखिए करके देखिए। उनको थोड़ा फाइनेंस की मतलब जरूरत है, उनको अगर फाइनेंस की आप सपोर्ट कर लेंगे सो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, बहुत सारे स्कीम चलता है, बहुत सारे इनिशिएटिव चलता है, बहुत सारे सुविधा उन लोगों को मिलता है, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाता है? बिकॉज उनका पार्टिसिपेशन वाज वेरी लो, उनका पार्टिसिपेशन, उनका भागीदारिता बहुत कम रहता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने पल्ली सभा का एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पर और भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पर एक दमन पिक्चर जबरदस्त सुपरहिट हुआ है, उड़िया मूवी एक दमन पिक्चर। दमन का मतलब है दुर्गम एरिया मलेरिया निराकरण, इसका मतलब इससे इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया। तो वहां पर मालकानगिरी एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर मलेरिया को कैसे दमन कर जाता है, कैसे इरेडिकेट किया जाता है। वहां पर एक डॉक्टर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर एक प्रोग्राम मतलब बना के सक्सेस किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है, जब काम हुआ था वहां पर आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, लेडी पुलिस ऑफिसर, बहुत सारे लेडी हेल्थ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द फार्मासिस्ट, द नर्सेस, द डॉक्टर्स, सब मतलब काम कर रहे थे। लेकिन जब क्रेडिट का टाइम आया, जब सफल हुआ, जब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कलेक्टर, मिनिस्टर सब वगैरह वगैरह इतना तारीफ कर रहे थे, अच्छा हुआ, वहां पर इंटरेस्टिंगली एक की महिला की भागीदारिता नहीं था। मतलब अभी भी देखिए एक पिक्चर का वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब काम कर रहे थे महिला को लेकर कर रहे थे, अरे आप लोग का भागीदारिता बिना कैसे सफल हो पाएगा, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। लेकिन जब अप्रिशिएशन की बात आया, जब फेलिसिटेशन की बात आया, एक भी महिला नहीं था। तो वहां उस टाइम थोड़ा सा लगा, अरे you should participate, you should welcome one woman at least so that she can express her experience, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, एक इतना डिफिकल्ट काम हमने करके दिखाया, सक्सेस हुए, तो क्यों हमको पार्टिसिपेट में भागीदारिता में नहीं लिया जाया। तो ये जो थोड़ा सा जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ना,
ये सब हो जाता है। वो जेंडर बजटिंग की बात करते हैं, वो जेंडर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, वो महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो वुमेन राइट्स की बात करते हैं, वहां पर सारे लीगल लॉ एंड राइट्स की बात भी करते हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन करने के लिए फ्रॉम होम टू टर्म, फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, उनका भागीदारिता इतना इंश्योर नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं देखती हूँ जब हम लोग भी काम करते हैं, महिलाओं को मतलब ढूंढते हैं, हम जो बुलाते हैं, आप लोग आइए, आप लोग बैठिए, पहले सुनिए, तो उस टाइम नहीं बहुत सारे काम है, मेरा हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, मैं बिना पूछ के नहीं आ पाऊंगी। अभी दैट स्टेरियोटाइप, अभी टिल नाउ दिस स्टेरियोटाइप माइंडसेट has been deep rooted in our society. तो we have to break this phenomenon. हमको ये सारे ब्रेक करना पड़ेगा। उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या मतलब इंसेंटिफिकेशन है, उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट का स्कीम है, क्या चल रहा है, उसको सारी सुविधा कैसे मिल पाएगा, उसको हमको थोड़ा ensure करना पड़ेगा। The SHG movement in Odisha proved that even women from marginalized section and rural background can excel if provided proper training and handholding support. मैं आपको बता रही थी मेरा जर्नी जो 2006 और से 2021 तक था, so I was just connected with lots of women self-help group members. वो सब आते थे, बैठते थे, हंसते थे, बातें कर रहे थे, अपने आप खुद इंटरलेंडिंग कर रहे थे और पैसा लेकर मतलब इंटरेस्ट में लगाते थे। लेकिन मैंने जब कहा आप क्यों काम नहीं करते हैं, आप लोग को काम करना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट हो पाएगा। नहीं हम क्यों इस मतलब ये झंझट में हम फंसेंगे, हमको बस वही ठीक लगता है। देन वी प्रपोज्ड टू द गवर्नमेंट कि हम सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए हैं। We are having now 7 to 8 lakhs या 9 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बट वो इतना काम नहीं कर रहे थे। सो धीरे धीरे आपको मतलब आप लोग आश्चर्य होंगे और बहुत जोर से काम अभी शुरू हो गया। नाउ women's are participating in different IGP process, income generation activities programs, and they are taking the training programs, and they are becoming self-sufficient, and they are doing massive convergence program also। वो खुद अपने SHG ग्रुप के माध्यम से, अपने फेडरेशन के माध्यम से जो पैसा बचता है ना, वो धीरे धीरे काम करते हैं सोशल वर्क। जैसे कि कोई ऑर्फनेज को जाता है, कोई ओल्ड एज होम को जाता है। और लास्ट पैंडेमिक में आप देखेंगे उड़ीसा के बहुत सारे महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर हो, जो फेडरेशन का मेंबर हो, जो उनका एक मतलब ग्रुप हो ना, वो भी धीरे धीरे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को देने लगे हैं, धीरे धीरे दूसरे को भी हेल्प कर रहे हैं। सो दिस माइंडसेट हैज बीन चेंज्ड ए लॉट। अभी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उड़ीसा का, आप थोड़ा वेबसाइट भी देखिए, कितना अच्छे से मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मुझे ये खुशी मिल रहा है कि आई वाज इन दैट प्रोसेस 5 years I tried to make them aware about their roles, their responsibility, their challenge and how to overcome them। अब धीरे धीरे जब मैं रास्ते में जाती हूँ, कहीं पर मतलब मिल जाती हूँ, वो हक कर लेते हैं, श्वेता मैडम आप आए थे ना, हमारा इससे से काम चल रहा है। So we have lots of examples also, and I can cited one example, that is one lady, her name is Sasmita Dalai. She was very shy. Even if whenever I just interacted with her in the stage, she was trembling. She always spoke, "Don't, madam, please, don't tell anything to me to speak in the stage." But interestingly, आपको यकीन नहीं होगा, now she is doing lot of things in women entrepreneurship as the that is millet mission। मिलेट के ऊपर, रागी के ऊपर इतना सारा प्रोडक्ट वो गिफ्ट में दे रही है, और धीरे धीरे मतलब इतना एम्पावर भी हो गए हैं। सो वंस आई जस्ट whenever I just switch on the TV, I saw her, I said, oh my god, she is Sasmita Dalai. Now she is just explaining very well how she was involved in in the campaign of pandemic, during the COVID-19 campaign. So she was just talking with the doctors and the government administrators and one politicians. And that time my happiness was no slow bound. Oh my God, she's that Sasmita Didi that now she speaks very well. I think this is empowerment. So we have to give the hand-holding support. We have to boost their moral power. We have to make them feel that yes, you have all the power. You can do wonders. So हमको थोड़ा उनको
चांस देना चाहिए, तभी जाकर वो मिरेकल कर पाएंगे, वो जाकर अच्छे से कर पाएंगे और खुद को संभाल सकेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली you will be surprised, her daughter, her name is Sona. I think she has completed her graduation. Now she is running one beauty parlor. जो पार्लर उस एक दिन मुझे कहा, दीदी मुझे पार्लर मतलब कोर्स बहुत पसंद आता है, मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। फिर मैंने एक कंसेशन रेट में, एक मेरा दीदी था जहां पर मैं जाती थी, वो उनको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दिए। नाउ शी इज द बेस्ट ब्यूटिशियंस एंड हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूट्यूब एंड गूगल। वो धीरे धीरे इतना अच्छे से कर पाए और उनके पास अभी 2 लड़के काम करने लगते हैं। तो उनको देखकर जो सुकून मिलता है, यस, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने हाथ बटा लिया, थोड़ा सा मैंने इंस्पायर कर लिया, अभी देखिए वो नतीजा है। सो इसलिए बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स है। मेरे काम करने के लिए इतना बड़ा बड़ा काम तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जो महिला, जो कुछ गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, यंगस्टर्स वो कुछ करना चाहते थे, मैं थोड़ा सा हाथ बढ़ाए, उनको थोड़ा सा मोरल पावर उनको बूस्ट किया, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी, उनको आगे ले आई। नहीं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, हमारे बात कोई नहीं सुनेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा अनसेफ फील करेंगे, हम हमेशा ना खुद को मतलब ऐसे दुर्बल सोचेंगे। लेकिन जब एक बार हम खुद को प्रूव करेंगे, हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चला आएगा, तभी हम जाकर कर पाएंगे। एंड ई बिजनेस हैज हेल्प्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग को पता है जे नाउ दिस इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन। अब नाउ दिस इज द एरा ऑफ जो सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब फेसबुक, अब इंस्टाग्राम, अब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, और अब इतना ज्यादा बढ़ गया। और मीडिया का रोल भी बहुत ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब धीरे धीरे ई बिजनेस में अभी महिलाओं का भागीदारिता बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम फ्लिपकार्ट कहेंगे, हम मिंत्रा कहेंगे, हम वो अमेजन भी कहेंगे, बहुत सारे महिला लड़की भी काम कर रहे हैं। हम लोग को पता नहीं, हम नहीं देख पाते हैं, बट नाउ दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स और उनका भागीदारिता बहुत बढ़ गया है। सो ये इंटरनेट के युग में, ये ई एरा के युग में जो ई बिजनेस शुरू हो गया है, उसका भी बहुत जबरदस्त सफल रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी, education, global experience, diversity of firms have opened up new avenues to the women entrepreneurs. Definitely, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार भी हो रहा है, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी हमारा महिलाओं की ज्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए हमको ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। एंड नाउ वुमेन आर प्रूविंग देमसेल्व्स। लेकिन रियलिटी बहुत अभी बाकी है, हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा। आप जो अभी एक डिस्कशन के माध्यम से आप चर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे ये डिस्कशन सारी महिलाओं के पास भी पहुंचेगा, दोज हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कोप। सो अगर एजुकेशन उनके पास होंगे, अगर एक्सपीरियंस उनके पास होगा और एक्सपोजर भी मिल जाएगा, आई थिंक दिस वुमेन, दिस पीपल, दे कैन डू वंडर्स। एंड और जो ये जो कॉमन फेनोमेना है, नहीं वो महिला, वो औरत है, वो लड़की है, वो इतना ज्यादा नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है ये जो बैरियर्स को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। और इसमें सबका साथ चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, नॉट ओनली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल साइड, बट ऑल्सो फ्रॉम द आम इंसान। आप सब लोग की भागीदारिता है, एक पुरुष हो या एक महिला हो, एक फैमिली से हम शुरू करेंगे, तभी जाकर हम जो मेन स्ट्रीमिंग जेंडर की बात कर रहे हैं, अभी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, तभी जाकर सफल हो पाएगा। सो आई थिंक मेरा जो परसेप्शन था, मेरा जो अनुभव था, और जितना मैंने स्टडी किया है आप लोग के पास मैंने रखा, और आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, फीडबैक मुझे बहुत जरूरी होता है आगे जाने के लिए, तभी जाकर हम एक अच्छे सा इक्विटी, इक्वालिटी और मेन स्ट्रीम की जेंडर भी बात करेंगे, और सारे जो महिलाओं को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Thank you so much for this wonderful session. आपने बहुत ही अच्छी तरह चीजें बताई। So, as the title suggests, जैसा ये टाइटल अपना सजेस्ट करता है कि परसेप्शन एंड रियलिटी। यस। तो
ब्रॉडनिंग वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो परसेप्शन है, रियलिटी है, आपने बहुत ही अच्छी तरह सिस्टमेटिकली आपने पुटअप किया है. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. Thank you, sir. Thank you so हम much. क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे. उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने बताया कि फ्रॉम 3K टू 3P टू 4 E's. Sorry. वेरी मतलब सक्सेंटली शी हैज एक्सप्लेन्ड. एंड ओवरऑल यही पता चलता है कि द प्रॉब्लम लाइज विथ सोसाइटी, विथ फैमिली, विथ इंडिविजुअल्स एज वेल. ओके, she has very well highlighted there are certain issues with a woman herself, then there are major issues with a male matlab I can say people in the family. Then there are certain issues in the government as a policies rather. But as we see of late, the current government is doing a lot and lot for women entrepreneurship, women empowerment. Okay, time to time, our Prime Minister always talk on these things. But even he has got a vision. तो ठीक है, आज existing जो women है who are capable, they can directly come into, but future में maybe this will grow as बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. But he has rightly started from bottom up approach where he's telling people, advising people, making policies for women empowerment. So very fantastic session, ma'am. Thank you so much. Very in detail and see possible है. She has given examples. Okay, perception है, नहीं कर सकते, एक साइड में है. But why can't you look at already successful women? She has quoted a very beautiful examples. They are worldwide known figures today. Whether Vandana Luthra है या Muzumdar है, Ritu Kumar है, they are well known worldwide. Okay, within our country, one figure she has highlighted more than 1,96,000 women entrepreneurs are already existing. Okay, it will grow definitely multifold with such an efforts by you people. Okay, particularly in Odisha, you are doing a fantastic job, ma'am. I appreciate and I'm very thankful for the society. Okay, from you are doing such a wonderful job. Even in this platform, we have got another woman entrepreneur, Sucheta ma'am. Also, she is also doing fantastic job. She is also globally known figure, right? Thank you, sir. So, as an audience, we have got good women participants today. I hope you enjoyed. So, more than equally, I can say more than women, men have to come forward and support women to achieve their goals and dreams. In fact, this is clearly as she has highlighted partly in this session. Okay, problem is lying with all the people, individual women and men and society as well. But if we address all these things, maybe the percentage level is higher or lower, but everybody has to work towards this to empower women. Okay, friends, I'm really enjoyed. This is all about industry insights for the day. The topic was perception about women entrepreneurship. So before I get into question answer session, definitely we have a question answer session. You can type in the chat box meantime, or we'll have an open session as well. But FIP is doing a fantastic work for the society and individuals as well. You may be thinking how to connect with FIP. We have got see, as in initially we have highlighted, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, नेटवर्क है, स्पॉट है, वुमनप्रेन्योरशिप है, यूथ है, बिजनेस कट्टा है, बिजनेस डिजिटल है. बट सभी को आम जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है या प्रोफेशनल है, उनको अगर फिप के साथ कनेक्ट होना है तो वी हैव गॉट टू काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स. प्राइमरी लेवल इज व्हाट बिजनेस स्पॉट. स्पॉट इज एन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ज्वाइन बाय स्कैनिंग दिस QR कोड और क्लिकिंग ऑन दिस लिंक. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. देयर आर नॉमिनल registration fees around 1,500 or something, right?
तो इसमें आपको एडवांटेज रहेगा, आप अप टू डेट रहेंगे व्हाट FIP is doing. You will get weekly seminars, sessions like this. You will get an opportunity to connect with people. Okay, thousands of people you can get connected and promote your business. Okay, so that is what Spot platform. The main platform is a networking platform where you will have so many privileges. Okay, apart from connecting people, attending weekly sessions, okay, there are monthly meetings, then you can become a core member team of FIP, like Sujata ma'am or Sucheta ma'am. They are also taking initiative and they are connecting with FIP. तो आप भी इसमें मेंबर बन सकते हैं और एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रायोरिटीज मिलेंगे, कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगे। तो ये मेजर नेटवर्क है, इसके लिए लिंक है और एक QR कोड है। ओके, so with this now I throw this house open for question and answer session. So I request all the participants, okay, you can either raise your hand or chat, put your questions in the chat box. Okay, आप अपना क्वेश्चंस ये कर, अभी भी कुछ डाउट है या आगे कैसे जा सकते हैं? आई एम फाइंडिंग मेनी दिस रूम, सेशन रूम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ओपनली, हाउ टू गो अहेड। देखिए, परसेप्शन एंड रियलिटी आपको सामने दोनों है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और यू मे बी फेसिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स टू come forward for your own entrepreneurship. So please, okay, house is open for you. Okay, the question answer session. Okay. Sorry. So there is a one question in chat box which I can see. It is from Prajwal Chavan, and the question is, ma'am, please tell some government schemes for women. Which sector now and future is best for women entrepreneurship? So that was the question. Okay. Yes. Thank you so much. Actually, yes, due to time constraints, I was not able to just highlight some schemes. There are some schemes that is like Khadi and Village Industries Commission. So we can get the support for the entrepreneurship training up. Is it audible? Yeah. Okay. Then training of rural youth for self-employment, that is TRISEM. This is another program. Schemes, Women's Development Corporations, WDCS. Marketing of non-farm products of rural women, that is Mahima. Assistance to rural women in non-farm development, and trade-related entrepreneurship assistance and development, that is TRADE. Integrated Rural Development Program, IRDP is also there. Then management development programs, this is also some programs, so we can get support, we can get the information, we can get the assistance from them. And there are various also other programs, that is Prime Minister Employment Generations Program, PMEGP. The total number of women beneficiary count has increased up to 43% from financial year 21 to 22. So I think there are certain schemes, whatever I just noted down for you. So you can get all the information from website, from the Google also, and from the government schemes, so that we can get the information, we can impart them, we can share the knowledge, and we can share the information to them, so that they can get connect with each other, they can get the benefits. And सबसे important चीज ये होता है, जो गवर्नमेंट का सारे स्कीम होता है, जो सारे इनिशिएटिव होता है, we have to make aware them. हम लोग को उनको अवेयर करना पड़ेगा, so that they can get benefits. It's our duty. Those people, those who are very proactively active in this information technology, and they are very proactively aware in different government initiatives, it is our role, it is our responsibility not to confine ourselves this knowledge. Rather, we should disseminate, we should distribute the knowledge to them, so that they can make aware. So yes, this is all about that. I think yeah. Okay. Yes, anybody else? There is Shashi Kumar Kandula. Is it possible to make one session like this about different opportunities available for women from government and other agencies? It will bring awareness for more women.
So I think, yes, absolutely. We are there for you, sir. And I think, CBK sir, can you please highlight our woman entrepreneur wing for this? Yeah, definitely. In fact, I was about to talk before getting into question answer. Friends, actually, FIIP is into a independent platform on women entrepreneurship. Okay, so FIP has initiated this already. We are collaborating with people like Sujata ma'am and Sucheta ma'am. Okay, so a lot of things are coming for women entrepreneurs through this FIP organization. Be assured about that. Okay, thank you. Mrinalini Bhalerao ma'am has raised her hand. Okay, you can unmute yourself and ask your question, ma'am. Yeah, thank you for a nice session. Just a question. I'm into farmer to consumer. I'm working with and for farmers with the intention of safe and nutritious food in urban area. And another part of it is economically successful farming. For most of the entrepreneurs, it's always a chicken and egg story, because there theoretically there are many schemes or there are many opportunities to get funds or to get mentoring or to get other facilities, but always मतलब ये होता है कि you show some results and then you will get all these things. So it is always I can either I can generate a chicken or I can generate an egg, and then if I get chicken first, then I will get eggs, and if I get eggs first, then I will get chicken. And this is the vicious circle where most of the women always move round and round and round, and then many of them stops. So yeah. What is your question, ma'am, actually? So question is, जैसे मैंने ट्राई किया था कि जब मैंने सुना था कि बैंक्स में जब मुद्रा लोन जैसी कोई फैसिलिटीज है, बट व्हेन आई विजिटेड मेनी अ बैंक, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला. उन्होंने जो नॉर्मल ऑफर किया था वो सारा ही जैसे टर्म लोन होता है या बिजनेस लोन होता है उसी तरह का था. Even we tried to get ourselves registered in Startup India. We couldn't go till the end. Then we tried to find some support कि कोई register करके दे सकता है, and he said the charges will be 80,000. Which is very hard to give for any startup or any small business, and that too for women entrepreneurs. So theoretically there are many schemes, but हम लोग जब उसको facilitate करने जाते हैं, there are many practical issues. At least I am staying in Pune, Maharashtra, and I am not aware of any other state, but it is the scenario in Maharashtra. So is there any suggestion or is there any solution for this? So it's a very long struggle for many women entrepreneurs. So Sujata ma'am, what she is talking about, okay, you have read so many schemes and options from government. So these are all in place on paper, but when practically somebody approaches to these agencies, so they hardly get any clarity or support. Forget support, don't even they entertain the things. They don't even openly talk about these schemes and all. This is our problem. Perfect. So maybe precisely my question is how to get connected to proper person who can get facilitation for these schemes. Absolutely. Okay, so अगर मैं कहूँगी तो वहाँ पर दो ऑप्शंस है. तो जैसे कि मैंने बताया कि I just got the information regarding BYST, Bharatiya Yuva Shakti Trust. That is a beautiful initiative, that is Mentors Mentee program, where mentors are guiding mentees in such a way to connect the bank, to get all the informations and to get all the right informations
and how they can do excellence in their business. So एक तो होता है मेंटर मेंटिस का रोल होता है. जब अगर हम मेंटर की बात करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन आता है मैम, आप जो मतलब डिस्कशन कर रहे थे कि सारे पर मेंटर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. सो वी हैव मेनी वॉलंटियर्स, वी हैव मेनी गुड पीपल दोज हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड्स, वी हैव टू कैच देम. हम लोगों को कैच करना पड़ेगा. एंड थर्डली, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, जब हम बैंक जाते हैं तो एक महिला का जो प्रॉब्लम होता है वो तो खुद नहीं जाएगी ना, तो किसी ना किसी का साथ तो हो जाएगी. सो someone should help him, help her out. कोई मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जो मतलब वॉलंटियरली काम करेगा, नहीं तो हस्बैंड हो जो एक एजुकेटेड पर्सन हो, वो अगर हेल्प कर पाएगी, डायरेक्ट बैंक से बात करेगी, वो कुछ रास्ता भी मिल जाएगा. एंड और सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है, जो सारी सुविधा उनके लिए उपलब्ध है, जो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, वी हैव टू प्लान अनदर सेशन रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट फैसिलिटी स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. उसके बारे में भी अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तभी जाकर मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल, ये एक रात का जर्नी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. समवन शुड टेक द इनिशिएटिव, समवन शुड टेक द मेजर रोल, एंड ही और शी कैन फैसिलिटेट द होल प्रोसेस. क्योंकि सब महिला तो एजुकेटेड नहीं है ना, सब लोग तो नहीं जान पाएंगे कि क्या क्या सुविधा है, मुझे क्या देना पड़ेगा. बैंक तो बहुत सारे बैंक है जो फ्रेंडली है, बहुत सारे बैंक है जो इतना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं. कोई मिडिल मैन हो, वो क्या कर रहे हैं, नहीं मुझे पैसा चाहिए, अगर आप इतना दे पाएंगे तो मैं काम कर दूंगी. जैसे कि ग्राम में चलता है, पंचायत में चलता है, सपोज मुझे इंदिरा आवास चाहिए, मुझे बिजू पक्का घर चाहिए, ओके, तो ना सरपंच इज आस्किंग 10,000 to 20,000 एज ए कमीशन. सो वो जो एक कॉमन फेनोमेना चल रहा है मैम, वी हैव टू ब्रेक दिस वन. हमको करना पड़ेगा. जैसे कि आप है, आप तो आप यू आर क्वाइट इन्फॉर्म्ड, you are educated and you have all the knowledge and informations, तो you have start the dissemination the process. I think तभी जाकर वो सफल हो पाएगा. इतना जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश अगर करेंगे, मुझे लगता है हम अच्छे से ये जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं ना, वो आ पाएगा. दिस इज माय परसेप्शन. बिकॉज मेरा जर्नी जो था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, वो बहुत, मैं चिल्लाती थी, मैं चिखती थी, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों बैठते हैं, हंसते हैं, घर में क्या क्या चल रहा है, मेरा बच्चा ये कहा, मेरा हस्बैंड ये कहा, मेरा सास ये कहा, वही जो कॉमन फेनोमेना चल रहा था, अब धीरे धीरे स्लोली चेंज होते जा रहा है. एंड आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम लोकल साइड ऑल्सो हाउ दे प्रूव देमसेल्व्स. सो मुझे लगता है धीरे धीरे चेंज हो पाएगा. हमको थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, हाउ वी कैन ओवरकम दिस सिचुएशन. थैंक यू. Sujata, adding to your answer, I would like to tell Mrinal Balerao. Yeah, ma'am, where are you in Pune? May I know which location you are in Pune? Baner. Okay, ma'am. Do you know about BYST? Yeah. You know? Yes. Then how your loan is not sanctioned then? My reverse question to you. Because, see, very honestly, you just contact me. I will connect with the concerned authority because I'm a master mentor of BYST national level. Okay. And I will help out you that why your loan is not sanctioned. Okay. I will see what is the technicality, legality, what there I will discuss in person. Okay. You note down my number. It is on the screen. I have already noted down all the numbers which are there in the chat box, and I will definitely contact you, sir. See, we are FEEP. Basically, we are working for the social development, not only in the social, but in professional development of each and every individual, and women especially. We are looking like you people will come. Like Sujata is from Odisha, and she is working wonderfully, and BYST is supporting wonderfully. She is a mentor of our BYST at Odisha. So don't worry, you will get a very, if you know BYST, I'm sorry, your loan should be sanctioned. Something maybe the technicality that I had contacted BYST few years back, but there are some rules and regulations that they mentor or give support to particular age group up to 35, and I have surpassed that age group. Oh, okay. Yeah. Then I will talk in person. Don't worry. Yeah. Thank you. I will surely contact you, sir. Thank you. Don't worry. This platform will support you. Don't worry, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, Dr. Popadrosa, for your support to ma'am.
We have got next question, Mr. Chetan Nemade. Okay, sir, unmute and ask your question, sir. Okay, sir, I just want to know your people opinion about one issue I'm going to put. As ma'am connected many things to women entrepreneurship, it's the family, the society, and many more factors. Correct. So until those factors are taken care of, you cannot expect a woman to directly go into entrepreneurship and just perform. Absolutely. Okay, so likewise, if you observe कि महिलाओं का दायित्व अलग है, उनसे अपेक्षा भी अलग है, the natural structure and everything is different. अगर हम महिलाओं के लिए सेपरेट ओलंपियाड गेम्स नहीं रखते हैं तो I don't think lady will be able to compete with those women, with those men. So likewise, अगर उनके दायित्व अलग है, सारी सिचुएशन उनके लिए अलग है, तो jobs में, because everything is connected, I said you cannot really expect women directly to go and go into entrepreneurship. उनको jobs का पहले experience भी लगेगा काफी women को, फिर उसमें से entrepreneurs पैदा होंगे. ये तो हमारे साथ भी होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ भी होता है. Many of them get into jobs first, take an experience, and then as the imagination go, they move on to entrepreneurship. तो अगर उनका दायित्व अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है, तो सेम वर्किंग कंडीशंस में वो कैसे परफॉर्म करेगी? ये बड़ा मुझे एक प्रश्न आता है, आप अपनी राय बताइए. एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो 2014 के आसपास I was going with some ladies to my office. उस समय लेडीज के लिए 3 months की ये हुआ करती थी लीव. तो उस समय मैंने चर्चा में कहा था कि मेरे हिसाब से तो कम से कम 1 साल के नीचे तो महिला मैनेज नहीं कर पाएगी. तो वो महिला ही मुझ पर थोड़ा सा ऐसा अजीब सा मतलब सोच रही थी कि ये क्या सोच हुई, जबकि उसका प्रॉपर एनालिसिस होने के बाद गवर्नमेंट ने उस 3 महीने के लीव को 3 साल की लीव बनाई. सो सिमिलरली आप जैसे कह रहे थे मैडम कि शाम को आना पड़ता है, ये भी देखो वो भी देखो सब कुछ देखो, then how can you expect a woman to spend the same number of hours as that of a man? ओके सर, जैसे आपने बताए थे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपने जो पहले बताया कि वुमेन हैविंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, मतलब परफॉर्म करना पड़ता है. इट्स ट्रू, इट्स राइट. बच्चे को पालना, बच्चे को पैदा करना, घर का काम संभालना, यस आई एम कंप्लीटली एग्री. लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के काम नहीं है. मैंने कहा था इट्स ओनली द वर्क, इट्स नॉट ओनली द वर्क ऑफ ए वुमेन. अगर हम चाहे तो उनका हाथ बटा सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं. घर का काम सबका काम होता है. अगर प्रेगनेंसी की बात आप करते हैं, अगर वहां पर तो मैटरनिटी लीव भी मिल जाता है. वो एक, क्योंकि पुरुष तो पैदा नहीं कर सकते, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, इट इज ओनली कन्फाइंड विथ ए वुमेन. बट अगर एक वुमेन बच्चा पैदा कर सकता है, कितना डिफिकल्ट होता है ये जर्नी सर आपको पता है, ठीक है. तो ये जर्नी के साथ साथ उसको थोड़ा सा सबल, मतलब क्या, वी शुड मेक सपोर्ट हर. हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा. अगर मैं, ठीक है, मैंने बच्चा पैदा कर लिया, मैंने घर संभाल लिया, मेरा बच्चा थोड़ा बड़ हो गया, अभी मुझे काम करना है, तो कैसे मुझे सपोर्ट मिलेगा फैमिली से, मेरा इन लॉ से, मेरा हस्बैंड से, ये आप सब लोग को तय करना पड़ेगा. माय पॉइंट मैडम, हम फैमिली पे जितना सपोर्ट मिल जाएगा उतना तो फैमिली वाले मान लो दे भी रहे हैं. जी सर. बट विल दैट सफाइज? क्योंकि 8 घंटा 9 घंटा काम आप क्या उस लेडी से अपेक्षा कर सकते हैं who has so many other duties as well? आप कह रहे कि ठीक है उधर की ड्यूटीज थोड़ी कम कर दीजिए, कितनी करेगी कर करके? नहीं, अदर ड्यूटीज का मतलब क्या है सर? इसीलिए तो मैं कर रही हूँ ना, घर का काम सबका काम है.
तो थोड़ा अगर हम साथ में हाथ बटा ले, अगर घर का काम मिलके कर पाएंगे, आप भी जाएंगे मैं भी जाऊंगी, 10 to 5 हम जाएंगे काम करेंगे, तो आराम से घर का काम अगर सारे मिलकर करेंगे तभी तो आसान हो पाएगा ना सर। इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कोऑपरेशन का जरूरत होता है फैमिली से, इन-लॉज से, हस्बैंड से। इसीलिए मैं कहती हूँ जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, अभी जो सामाजिक संरचना है वो अभी हमको अलाउ नहीं करता है। तुम लड़की हो, तुम शादीशुदा हो, तुम घर का वाइफ हो, तुमको घर भी संभालना पड़ेगा, अगर तुम चाहे तो घर काम खत्म करके फिर तुम्हें दूसरा काम करना चाहिए। वही जो कॉमन फेनोमेना है, वो जो माइंडसेट है, उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा सर। ठीक है, हम बच्चा पैदा करेंगे लेकिन संभालना तो दोनों को है ना। हम ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे लेकिन न्यूट्रिशन भी दे देना है, पापा का काम है ना। हम घर का काम किचन भी घुसेंगे लेकिन थोड़ा आप भी हाथ बटा लेना बर्तन साफ करने में, वेजिटेबल्स कट करने के लिए। तो वही माइंडसेट को हम थोड़ा सा क्यों आज हम डिस्कशन किए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, आप बताइए। नहीं तो हम मेल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में क्यों डिस्कशन नहीं किए? क्योंकि आप तो खुलम खुला है, आप लोग के पास तो सारे सुविधा है, आपका तो रेप होने का चांसेस नहीं है, आपको तो मोलेस्टेशन होने का इतना चांसेस नहीं है, अब तो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी चांसेस नहीं है। तो सारे जो वल्नरेबल ग्रुप क्यों आते हैं हम वुमेन? इसीलिए क्योंकि हमारे पास सेफ्टीनेस इतना नहीं है। इसलिए मैंने कहा सर, मेरा पॉइंट ये है, ये इट इज नॉट इम्प्लीकेबल फॉर ऑल द फैमिलीज। सारे परिवार में ऐसे नहीं होता है। आप लोग जैसे होते हैं ब्रॉड माइंडेड, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार है, अभी भी बहुत सारे फैमिली है, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, दे आर जस्ट शाउटिंग फॉर एनी हेल्प। उनको वो चिखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, मुझे ये करना है, थोड़ा मुझे सपोर्ट दे दीजिए। तो ये अगर सपोर्ट मिल जाएगा ना सर, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात हम कर रहे हैं, तो पैसा ना हो सके लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा उनको प्यार मोहब्बत, थोड़ा सा उनको ये नर्चरिंग कैरियर का जरूरत होता है। इसलिए मैंने पॉइंट मेरा रखा। तो ये कुछ काम नहीं है कि महिला का काम ये है, पुरुष का काम ये है। आप थोड़ा चिंता कीजिए, एक महिला सुबह उठती है, रात को देर रात तक सोती है, क्यों? क्या एक पुरुष क्यों नहीं कर पाएगा? तो थोड़ा सा उसको संभालना जरूरी होता है। तो ये माइंडसेट अगर चेंज कर पाएंगे सर फैमिली में, तो मुझे लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आगे जा पाएगा। So this is my perception। अगर मैंने कुछ गलत कहा मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ये लगता है। हर चीज जो वुमेन कर पाएगी वो तो मेन नहीं कर पाएंगे मैडम। और जो हर कौन चीज सा काम सर बताइए, कौन सा काम बताइए जो महिला काम कर पाएगी पुरुष नहीं कर पाएंगे? सिर्फ 3 चीज को छोड़कर, एक बच्चा पैदा करना, प्रेगनेंसी, एक है ब्रेस्ट फीडिंग और थर्ड है मेंस्ट्रुएशन। ये 3 चीज छोड़ के कौन सा काम पुरुष नहीं कर पाएगा? आप मुझे बताइए। Yes, any more questions please? और किसी का क्वेश्चन है? Any questions? I see there are no more questions in chat box. So hello. Yeah. Yes. I just wanted to. I'm sorry. I just wanted to ask, can I get connected with Sushmita Dalai, who is working in millets? Yes. Yeah. From my side, ma'am, Randy ma'am. Yes. You know her very well, right? Yes. Sushmita Dalai is working in the slum Bhubaneswar slum community, and now she is becoming the very vibrant leader here. And yes, I can connect with you, ma'am. No problem. You'll be so happy. Maybe वो हिंदी में इतना fluent नहीं बोल पाएगी, but she can communicate. No problem. No issue. Yes. Thank you. Yes, sure. I'll do. I think. मेरा एक सवाल है आपको सुजाता। जी सर। Yes. I'm very proud. A very nice presentation, very lively presentation, very factual presentation, and you made us up to 9 o'clock. That is the beautiful thing. The session. It was my pleasure. Yeah, we are not also feeling that it should end, but constants are there at the time. But really, I appreciate, and I am very happy that Chetan has asked first-time question. He never asked question to any so far. I really, because Chetan is a earlier ex-vice chancellor of University of Dashi there, and he's a very knowledgeable. He is working in parenting. My question to you, whatever you pointed out, sir, the psychology of the male, Namaskar. I'll call you and back, psychology of the female. Here, what area, the concern of that area, where women should basically get acquainted with the happenings of the entire
concern thing, but rightly you pointed out, depressed area, suppressed area, whatever SC, ST, and OBC altogether, the percentile of the even minorities, whatever you have spoken, it's a fact. This is a study. It's a fact. We cannot deny it. But, as we all are FEEP, and you are also the part and parcel of the FEEP, that how we can now in future can plan such a roadmap for empowering women in coming days through FEEP platform. That is what I want to ask. Okay, sir. Thank you so much, sir. It's a beautiful question. Actually, I was initially thought, to discuss with you. Sir, I think whenever we are giving the platform to discuss about women entrepreneurship, my request is, so just like this session, you have to connect, you have to organize a bunch of programs, not only training programs, orientation programs, or a connect program to the women entrepreneurs. And we have to invite from different segments where they are actually exactly working. Some myths they can say, some taboos they can say, and exactly what they are facing in their life. Unless we analyze the obstacles, suppose मेरा कुछ obstacles होगा, maybe Murali madam को और कुछ obstacles होगा, Sucheta madam को और कुछ obstacles होगा. So we have to gather so many obstacles, the challenge, the problems, what they are exactly facing. Then we have to make the roadmap. अभी हम रोड मैप नहीं बना पाएंगे. अभी एक परसेप्शन आइडिया आ गया है कि yes, this is commonly happening, this is the general challenge we are facing. But after connecting with so many lady entrepreneurs, not only entrepreneurs, बहुत सारे mentors भी होंगे, बहुत सारे आप जैसे मतलब थोड़ा सा पॉलिसी लेवल का कुछ हम महिलाओं के भी इनवाइट करेंगे and just plan for one workshop. Maybe not in webinar, just like a seminar. अगर फिजिकल हम मिल पाएंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, इट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय FEEP family, so that they will throw the some ideas so that we can work on it. अभी नहीं बता सकते हैं कि कैसे हम अभी कर पाएंगे, सबको ले आएंगे, लेकिन सबको मिलाकर अगर एक हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, एक दो दिन के हो सके, अगर मुंबई पे हो, कहीं पर हो, दिल्ली में हो, एक अगर हम इनवाइट करेंगे डिफरेंट सेगमेंट से जो काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सारे पॉलिसी लेवल में हो, थ्रू ग्रास रूट लेवल टू पॉलिसी लेवल, वी कैन इनवाइट देम, वी कैन सजेस्ट देम, एंड वहां पर एक मानस मंथन, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, तभी जाकर एक रोडमैप हो पाएगा. एंड अगेन FIP विल वर्क ऑन इट, सो दैट मुझे लगता है कि ये अच्छे से जा पाएगा. अभी हम कैसे डिस्कशन कर पाएंगे ये फाइनल है, नथिंग इज फाइनल, चेंज इज कांस्टेंट इन आवर लाइफ. बहुत सारे नॉलेजेस पर्सन है, सो नॉट ओनली यू कैन इनवाइट द फीमेल पर्सन्स, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, साइमल्टेनियसली वी कैन include like Chetan ji and other people, whatever the male persons you have, but women centric you are thinking for the women's, that will be more viable. So if balance और equity maintain होगा, तभी जाकर हम roadmap बना पाएंगे. Because my concern, just more inclusion of women entrepreneurs. वो आगे आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर कर पाएंगे, बोल पाएंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट आ पाएगा. जैसे कि सर बोल रहे थे उनका कुछ डिफरेंट काम होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब बराबर है, बराबर की हक हम बात कर रहे हैं. सो वी हैव टू मेक equality, equity, and very transparent to all, so that they can actively participate in this session. They can say, मुझे जैसे कि हम ग्रास रूट से किसी को भी बुलाएंगे, आपका क्या दिक्कत आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, तो हमको ना डिफरेंट इंसाइट मिल जाएगा. अरे हे, हम तो ये नहीं सोच रहे थे, हम तो टाउन एरिया में रहते हैं, हमारा तो सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, लेकिन वो रोजी रोटी में क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो अच्छे से बोल पाएंगे. तो इसलिए we have to invite different women's men's also, so we can have a brainstorming session, maybe 1 or 2 days, they can we come to the निष्कर्ष, और आगे हम आ पाएंगे कि इसके ऊपर FIP हमारा काम करेगा. मेरा ये रिक्वेस्ट है सर. Excellent, madam. It is very excellent. And also my request, I'll be so happy if you'll be part in this process. So please invite me. Otherwise, I will be discriminated whatever I am telling. So please. No, you are perfectly correct. Thank you so much. You have put forward straightly, very nicely, the fact how it can be, what could be the roadmap. Absolutely right, ma'am. And you are most welcome. We will be there, of course, when we do that. Thank you, sir. Thank you. So, shall we go towards the conclusion, friends?
Yeah, sir. I request Popat sir to conclude. Oh, thank you very much, sir. First of all, with the great, love, respect, and kindness, Sujata, very wonderful presentation. On behalf of your family, yes, it is really wonderful. The way you enlightened, the way you focused. नारी को नारी ने किस तरह से नर को सही समझाना चाहिए, ये बात आपने कही है. तो ये नर हम जो है सारे और नारी के साथ होते, क्योंकि नारी नर के बिना नहीं होती. ये जो शब्दों का जो खेल है उसको आपने बाकायदा तोड़ दिया है. You break up that. You told about equity and equality. That is a very, very important thing, and very happy FIP is looking from that perspective. Yes. FIP wants independency, honest. That is why we have a separate independent woman platform for the entrepreneur. And this is what the पहली कड़ी आप है जो इस कड़ी से हमने शुरुआत की है. तो आगे जाके ये कारवा बनेगा, ये हमें विश्वास है, क्योंकि हमारे नवनाथ जी हो, मैं हूँ, अतुल जी है, हमारे जी है, और मिसेस नवनाथ जी भी है, देवकर मैडम. ये सारी इनकी विचारधारा ये एक है कि जो लेडीज, द यूथ should be given exposure, development in that line. So I'm very thankful. जो भी participant हमारे हैं अलग अलग राज्यों से हैं, हम उनसे we are very happy, we are thankful on behalf of the family, and this is really touching topic, sensitive topic, and a really excuse me, understandable topic, and the topic to give a focus. So thank you very much, Sujata, the way you enlightened in a lucid language, simple language, very nice presentation. We all, the family, really, bottom of the heart, we thank you. And it is a beginning. It yet started. The journey now began. And yet it's about to come back. With this note, I'm thankful to everyone. Thank you for having very patience and connecting with people. Again, next week, we are coming with a new dimensional thought process. We are bringing another education slot, another awareness program to all of you. Join us, connect us, grow us, because our theme is only that we are uniting together and working together all the time in that line. So thank you. With this note, we are closing this session and very happy, Sujata. Just one line, sir. And it was my, not only my first webinar on women entrepreneurship, it is the it's a platform to just share my experience with so many intellectual personality from Dr. Sir and all the other persons. So I want to say something that ये जो शुरुआत आप लोग ने किया है बहुत अच्छा किया है, but it not be restricted with this webinar. It must be reached to all the voiceless people, those who are not getting the scope, those who are not getting any insight to just express themselves. So please be with them, please make some platform for them, please enlighten them, so that we can bring together a very beautiful social order towards women entrepreneurship. And thank you, FIP family, for giving me such a beautiful opportunity, so that I just expressed whatever I just experienced in my life. And lastly, मैं कहूँगी कि thank you so much to my in-laws family, to my parents family, to my husband, to giving me such a beautiful opportunity and guiding me, so that I am expressing my gratitude towards all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Most welcome, ma'am. Thank you and most welcome. Very shortly, we are working on a youth, and we are working independently with the youth values and culture and sanskar. Yes. For that, we are taking care of the woman also independently. So yes, you'll have to lead from the Odisha. That is what yes, we want to do. Definitely, sir. I'll be there, sir. Always with you, sir. Thank you so much. Namaskar. So kind of you. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, friends. Thank you so much for your time, valuable time. And we are sure you enjoyed this session. So with this, we close for the day, this session.